Okay, now after this, two types of improper integral. Type 1 हमने देखा, type 1 के अंदर limits हमने देखे कि any limit, either upper limit or lower limit, if that is going to be infinity. So how we are going to cater this? Now we are taking the example to understand that how to find out that integral where it's a type 1 integral of improper integral and whether the area is finite or not. So focus on the question. That's your question. The limit is infinity. So first thing you decide that it is an improper integral. Okay. And the integral is what? X to the power p or numerator में लिखा है dx. You want to find out whether this converges or not. Means the answer is finite or not. Okay. So when does this integral converge and for what value of p? Basically, p is a variable here. So you want to know for what values of p this integral will converge or for what value of p this will diverge. So what you do, you will first assume that let's suppose कि the value of p is not equal to 1. 1 नहीं है, क्योंकि अगर 1 होगी तो पावर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला इस पे नहीं लग सकेगा. ठीक है, तो आपने कहा अगर 1 नहीं है भैया, तो अगर ये 1 नहीं है तो यू कैन सी दैट्स हाउ यू विल इंटीग्रेट दिस. आप इस x पावर p को न्यूमरेटर में ले जाएंगे और न्यूमरेटर में ले जाके उसकी पावर में एक जमा करेंगे, टोटल पावर में डिवाइड कर देंगे. And then you put the limit 1 to b, where b is a variable which tends to infinity as we have seen on the previous slide. Now you have this answer with you and now you are going to apply the limits. आपने कहा भी पहले तो मैं मेरा जो वेरिएबल x है उसकी जगह मैं क्या रख दूंगा, b रख दूंगा. तो इसी कि मैंने 1 अपॉन ये जो 1 माइनस p लिखा हुआ है इसको तो ब्रैकेट से बाहर निकाल दिया और ब्रैकेट के अंदर जो वेरिएबल है इसके ऊपर मैंने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा दी. तो पहले मैंने इसके अंदर b रख दिया तो ये हो जाएगा b का पावर माइनस p प्लस 1 और फिर उसके बाद मैं इसकी जगह 1 रखूंगा तो जब 1 का पावर कुछ भी हो तो वो 1 ही रहता है. तो इसी द सेकंड पार्ट इज 1. तो दैट इज व्हाट यू एंड अप विद. ठीक है, आपने कहा कि भाई ये अब ये जो लिखा हुआ है b का पावर माइनस p प्लस 1, अगर मैं b को डिनोमिनेटर में ले आऊंगा तो ये हो जाएगा b की पावर p माइनस 1, क्योंकि मैं नेगेटिव p से पॉजिटिव p हो जाएगा और नेगेटिव 1 से पॉजिटिव 1 से नेगेटिव 1 हो जाएगा. Now on this thing, what is the answer of this integral? You are going to apply the limit b tends to infinity. Why? Because b is a limit जो कि यहाँ से आपने पिक की है infinity की जगह से. ठीक है, so with this infinity limit you are going to apply on this expression जो आपके पास आंसर आया है. Now, when you apply the limit b tends to infinity, see what happens. When you apply the limit b tends to infinity here, now it depends कि what is the value of p basically. अगर ये p का value 1 से बड़ा. Now, moving on to the concept again. If you have to integrate, ठीक है, आपने integrate किया, now you apply the limit b tends to infinity. ठीक, p tends to infinity, आप depending on p, अगर ये p का value आपके पास जो है वो greater than 1 है, ठीक है, तो what will happen? If it's greater than 1, what will happen? क्या आप ये देखिए, अगर ये 1 से बड़ा होगा तो ये पॉजिटिव पावर रहेगा. डिनोमिनेटर में पॉजिटिव पावर होने का मतलब ये है कि दिस विल स्टे इन द डिनोमिनेटर, राइट. द वैल्यू b विल स्टे इन द डिनोमिनेटर. ठीक, बिकॉज द वैल्यू इज ग्रेटर देन 1. ग्रेटर देन होने के अंदर जो भी होगा, p अगर 1 से बड़ा होगा तो माइनस होने का एक पॉजिटिव आंसर देगा. ठीक है, एंड विद दैट पॉजिटिव आंसर व्हाट विल हैपन? With that positive answer, you will stay in the denominator. And when you apply the limit b tends to infinity here, what will happen? क्योंकि अब ये denominator में है, तो the denominator will become infinite, and that will make this whole thing zero. Why? Because it is 1 over infinity. And with this 1 over infinity, you will having 0 here, और ये बचेगा सिर्फ -1. और ये -1 क्या करेगा? ये जो 1 minus p लिखा हुआ है इसको क्या बना देगा? p minus 1 बना देगा. ठीक है, that will make it p minus 1. And that is the case when p is greater than 1. दूसरा केस क्या होगा कि अगर p less than 1 हो, क्योंकि we have initially decided that p is not equal to 1. So the second case is when p is less than 1. अगर p 1 से छोटा होगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये p अगर 1 से छोटा होगा तो ये आंसर नेगेटिव में रहेगा. जब ये आंसर नेगेटिव में होगा तो b का पावर नेगेटिव होगा, तो यू कैन टेक इट इन द न्यूमरेटर. You can take the b in the numerator when the power is negative. So when you apply the limit b tends to infinity, what will happen? This whole thing will become, the whole term will become infinity, right? With this infinity, obviously infinity minus 1 will be infinity and the rest of the thing will goes to infinity. Why? Because infinity is multiplied with all of the rest of the thing. And your answer is infinite for p less than 1. यानी p का वैल्यू अगर less than 1 है इस इंटीग्रल के अंदर जो ऊपर लिखा हुआ है, तो उसके अंदर क्या होगा कि आंसर क्या आएगा? infinity आएगा, right? Got it? With this infinite value, you conclude one thing. And that is what, कि अगर आपके पास वैल्यू जो है वो okay, this one,
p ग्रेटर देन 1 का मतलब ये है कि अगर p ग्रेटर देन 1 है तो ये एक्सप्रेशन देखो रिजवान, यहाँ पे p अगर 1 से बड़ा होगा तो क्या होगा, 1 से कुछ भी माइनस कर दोगे तो ये पॉजिटिव पावर रहेगी। पॉजिटिव पावर का मतलब इट विल स्टे इन द डिनोमिनेटर। When it stays in the denominator and you apply b tends to infinity, the denominator will go to infinity. Means this thing is going to be zero, and this is 0 minus 1. 0 minus 1 का मतलब ये माइनस 1 इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 माइनस पी से p माइनस 1 हो जाएगा। क्लियर है भाई रिजवान? ठीक है, ओके। सो विद दिस यू कंक्लूड के p के मुख्तलिफ वैल्यू के लिए, यानी अगर p का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, बट व्हाट आई मीन बाय ग्रेटर देन 1, यानी अगर यहाँ पे स्क्वायर है, dx अपॉन एक्स स्क्वायर है, dx अपॉन एक्स क्यूब है, x पावर 5 और एनी वैल्यू ग्रेटर देन 1, इवन इफ इट इज 1.5, सो यू कैन सी के 1 से इन्फिनिटी वाला इंटीग्रल जो एरिया बाउंड कर रहा होगा वो फाइनाइट रहेगा। दैट इज व्हाट वी मीन, एंड वी कैन आल्सो इवैल्यूएट इट एज द वैल्यू एज बाय जस्ट बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ p here. But if the value of p is less than 1, what will happen? The value of the area will be infinity. Means जो area bound हो रहा होगा वो सूरत में क्या हो रहा होगा, वो इनफाइनाइट आ रहा होगा। ठीक है, ओके। नाउ ऑन द अदर हैंड, इफ द वैल्यू ऑफ p इज 1, अगर p का वैल्यू 1 है तो क्या होगा? यू रिमेंबर कि अगर p का वैल्यू 1 होगा तो हमारे पास जो फॉर्मूला लगेगा वो फिर अब पावर इंटीग्रेशन का नहीं फॉलो हो सकता, तो यू विल बी गोइंग फॉर द फॉर्मूला एज dx अपॉन x इन फंक्शंस आपका डिनोमिनेटर में और उसका डिफरेंशियल न्यूमरेटर में। सो यू विल राइट डाउन द आंसर एज ln of x. दिस ln of x व्हाट यू आर गोइंग टू डू, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहाँ पे अप्लाई करोगे, यानी ln of b minus ln of 1, where ln of 1 is 0 basically, or when you apply the limit b tends to infinity, the whole thing will go to infinity. That means कि p is equal to 1 के लिए भी ये जो इंटीग्रल है ये डाइवर्स करेगा। तो यू डिसाइडेड टू थिंग, p is equal to 1 पे डाइवर्स करेगा और p लेस देन 1 पे भी डाइवर्स करेगा। तो यू कैन से कि ये इंटीग्रल जो है, जो कि 1 से इन्फिनिटी का इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, दिस विल कन्वर्ज ओनली इन द केस व्हेन p इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, in the rest of the case p less than 1 or p equal to 1 is going to diverge। ठीक है भाई सबको? any question for this slide of improper integrals? Okay, so let's move on. Now if you have different integrals, here you can see in this slide कि अगर limit infinity के तौर पे आ रहा है तो obviously they are improper integrals, so you conclude के improper integral है, and then you are going to evaluate them. If your answer is going to be finite, then the integral converges. That means the area bounded by the curve is equal to minus 5x. Between 0 and infinity will remain finite. ठीक है, तो इसको अगर हम इंटीग्रेट कर लें तो ये हमें आंसर जो है जो बताएगा उससे हमें इसको इवैल्यूएट करने में आसानी रहेगी। लेट मी राइट इट डाउन। चलिए मैं आपको एक आइडिया देता हूँ कि ये कैसे इंटीग्रेट हुआ। 0 से इंफिनिटी और e टू द पावर माइनस 5x dx। ठीक है, so let's move on to the desk. There's the desk. Okay, so we want to integrate this. क्या होगा कि भाई इसमें आपने कहा कि भाई मुझे यहाँ पर क्योंकि ई के फॉर्मूले के लिए मुझे यहाँ इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है, इसी के भाई मुझे -5 से उसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा। 0 से इंफिनिटी का लिमिट है e -5x and -5 dx. When the differential is here, you can say you can repeat the integral this and your limits. अच्छा, यहाँ पे जो लिमिट इंफिनिटी है इसको यहाँ शुरू में ही आप जैसे लिमिट b टेंड्स टू इंफिनिटी बताया, इसको रिप्लेस कर लें 0 से b। ठीक है भाई, दिस इज फ्रॉम 0 टू b एंड दिस इज e टू द पावर -5x dx। ठीक है, सो वी आर बेसिकली हियर विद 0 टू b, लिमिट्स आर 0 and b। ठीक है, एंड द थिंग इज दैट दिस इज लिमिट्स b टेंड टू इंफिनिटी। ठीक है, so with this you can conclude कि ये जो है
इंटीग्रल अब इवेल्युएट आपने करना है, ठीक है। क्या होगा इसमें अब, दो चीजें हैं, या तो आप पहले माइनस से लिमिट को ऊपर रिप्लेस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा लिमिट b टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है, and this is e to the power 1/5 you can take out, this is e to the power minus 5x minus, ठीक है, ये चलिए अभी ऐसे ही लिख लें, ये है 0, ऊपर वाला 0 हो जाएगा और ये b हो जाएगा, एंड दिस इज 1/5, ठीक है। और लिमिट लगाएंगे अगर आप, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पहले कर लीजिए, लिमिट b टेंड्स टू इंफिनिटी, ये होगा e का पावर 0 विच इज 1 माइनस e टू द पावर माइनस 5b, ठीक है। माइनस 5b का मतलब है यू कैन राइट डाउन दिस एज e टू द पावर 5b, 1/5 लिमिट b टेंड्स टू इंफिनिटी। अब व्हेन यू अप्लाई द लिमिट, तो 1 पे तो लिमिट का कोई फर्क नहीं पड़ता इसके ऊपर, ठीक है। लिमिट इज गोइंग टू अप्लाई हियर, व्हेन यू अप्लाई b टेंड्स टू इंफिनिटी, so this will make the denominator infinity, b tends to infinity will make this denominator infinity, which will ultimately make this 0, ठीक है। and when this is 0, this means your answer for the integral is 1/5, which is finite, that means the integral converges, ठीक है। ये आपका इंटीग्रल था, therefore integral 0 to infinity e to the power minus 5x dx converges, ठीक है। that is what you conclude with the finite answer। तो आपने क्या किया, लिमिट सिंपल लगा निकालनी है जैसे हमने देखा प्रोसीजर के अंदर अपने, और आंसर अगर आपका फाइनाइट आ रहा है तो यू कैन कंक्लूड के द इंटीग्रल, द फर्स्ट इंटीग्रल यू सी द इंटीग्रल कन्वर्जेस। तो बस नॉर्मल तरीके से इंटीग्रल आपने इवेल्युएट करना है, जैसे अब यहाँ पे आपका दो इंटीग्रल आ रहे हैं, दो इंटीग्रेंड आ रहे हैं, तो इंटीग्रेंड के अंदर ऑब्वियसली आपने क्या करना है, बाय पार्ट्स लगाना है, एंड देन यू विल मूव ऑन एज द वे। इसका सोल्यूशन इसके अंदर शामिल भी है, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिखा भी दूँ, अटेंडेंस लगानी है मुझे भी। So you can see ये इसमें ये 1/5 वाला भी हुआ है, the next you will integrate it by parts, and whatever you end up with, you see the last part will demand, because you are evaluating a limit, the last part demand the L'Hopital rule. Why? Because it is b to the power e to the power b, and when you apply the L'Hopital rule, with that you can conclude with b tends to infinity that the result is going to be 0, ठीक है। So when 0 is a finite value, so you can conclude कि ये जो है वो finite answer दे रहा है। So improper integral converges, that means when you have having a finite answer। Okay, so मैं attendance पे चला जाऊँ, okay, attendance लगानी है, तो there is the attendance for the first one। तारीख क्या हो गई भाई, today is 23। okay, यहाँ कौन कौन बैठा हुआ भाई, अब्दुल रहमान है, ये अब्दुल रहमान, please open your mic and speak up। Abdul Rahman, okay, there's the chat thing, Abdul Rahman is here, okay। Lisa Rizvi, Present. आमना सिद्दीक, ठीक है, Present. अमान सिद्दीक, सॉरी, ओके, अमान, सॉरी अमान, अमान सिद्दीक। आमना अनवर उसके बाद है, अच्छा, आमना अनवर, Present. के अंश, अंश is here, अंश is not here, then Armish, Armish not here, अशाज तो नजर आए थे मुझे, अशाज आर यू हियर, पिछले सेशन में मुझे नजर आए थे, जो जिनको मैंने देखा, अशाज इज हियर, अशाज का नाम तो लिखा रहा, सो रहे हो अशाज, क्या लग रहा है, ओके। बिलाल तारिक, बिलाल आर यू हियर, अशाज, हाँ गॉट इट, अशाज, हाँ बिलाल तारिक नॉट हियर। फातिमा से दानिश, दानिश आर यू हियर, दानिश इज हियर, यस, Present, sir. ओके। फातिमा से तो अभी बात हुई। हनीफ, हनीफ सुरती,
ऑनलाइन क्लास में भी नहीं आता क्या? हरमैन बैठी थी। हसन अहमद। प्रेजेंट सर। Okay. हसन समझ में आया है? जी सर। अच्छा, महम अमानत। महम अमानत। Present, sir. ओके। महम खान। महम खान नहीं। ओके। मरियम। Present, Maria. मरियम अहमद। अच्छा, मारिया। Present. Present, sir. ओके ओके, गॉट इट। मरियम एंड मारिया। महम खान नहीं थी ना? ये मैंने गलत बता दी। महरीन। Present. और अथर। अथर भी नजर आए थे मुझे। Present, sir. ओके। अस्का। और मीर। Present, sir. और मुस्तफा खान। Present, sir. ये मुस्तफा मिर्जा। प्रेजेंट सर। मुस्तफा मिर्जा, क्या लेक्चर की पेस बहुत फास्ट है? नहीं नहीं। ओके। शहीद। ओके, शहीद सिंह प्रेजेंट। शहरोज। शहरोज इज हियर। नहीं है। उसके बाद मुहिबुल्लाह। नहीं सॉरी, याया। याया इज हियर। याया परफॉर्म वेरी वेल इन। वही मोहम्मद याया है कि हमारा मोहम्मद याया? 19 मार्क्स ही स्कोर्ड इन फर्स्ट टर्म। नहीं है। ये आया है या नहीं है? मुहिबुल्लाह। नॉट हियर। राहिम। नहीं है। रेयान। रेयान तो नजर आए थे मुझे। रेयान, आर यू हियर? Present, sir. रिहा भी थी। Yes, sir. ये कौन? एक मिनट एक मिनट, एक बीच में यस सर कोई और भी बोला। राहिम है। रेयान। राहिम, आर यू हियर? Sir, मैंने बोला था yes, sir. अच्छा, रेयान ने बोला था, सही। ओके, सो रेयान इज हियर, ठीक है। और रिहा भी बोल दी। इसका रिजवान। आई थिंक रिजवान इज द गाय हु हैव आस्क्ड द क्वेश्चन। हियर सर। रिजवान है। ओके। शुक्रान। Present, sir. ओके, शुक्रान। शुक्रान, यू हैव टू वर्क हार्ड। और सिद्धार्थ। Present. सैयद अब्दुल्ला। Present, sir. फैजी। फैजी वाज हियर। फैजी, यू टू यू हैव टू वर्क Present. हार्ड। हाँ, पढ़ाई करो थोड़ी। Yes. अच्छा, साद अली। साद अली। साद नहीं आज। ओके। सैफ। सैफ। तहा है। सैफ नहीं। तहा है कि नहीं है? तवस्सुल। प्रेजेंट सर। उष्णा थी। और विनय। विनय इज नॉट हियर। विनय सो तो नहीं रहा भाई? क्लास में ही सोता रहता भाई। वहाज बैठे हुए थे, वहाज स्टिल हियर। ओके। Present. एंड जैद भी थे। जैद स्टिल हियर। Present, sir. ओके, सही है। थैंक यू गाइस। ये लेक्चर मैं अपलोड कर दूंगा, देख लेना। इसका एक जो फर्स्ट पार्ट के इंटीग्रल है वो करके रिजल्ट मैच कर लेना, आर्क लेंथ के भी। और इम्प्रॉपर इंटीग्रल हम और थोड़ा कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में भी। ठीक है। थैंक यू गाइस फॉर अटेंडिंग टुडेज लेक्चर। सी यू गाइस ऑन। Okay, sir. वो Thank you. बोले। सर वो पुराना लेक्चर अपलोड कर ली। हाँ, कभी किया बेटा, अभी किया। देख लेना, वो हुआ हुआ सही है। थैंक यू सर। ओके भाई, ओके, थैंक यू गाइस। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखो।